ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم خدا کے خدام سے انتہائی باعث برکت بات چیت سیکھ رہے تھے. خدا ہمارے ساتھ ہے. تو آج کرسمس کی ان خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے انتہائی باعث برکت مضمون لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تاکہ آپ کلام اقدس کی روشنی میں خوشی منائیں اور جو جائز اور واجب ہے وہی کام کریں. تو خدا کے خدام نے بڑی محنت سے جذبے کے ساتھ اچھے الفاظ میں آپ کو سکھایا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں اور اس کے تعلق سے مزید سیکھتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر شوق شریف سے کہ ہمیں سکھائیں خدا ہمارے ساتھ ہے. جی پادری صاحب. جی سر، بہت شکریہ. سب سے پہلے میری طرف سے ہوشنا کی ساری ٹیم کو، آپ کو اور جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، ٹیم کے ممبر ہیں، ان سب کی فیملی کو میری طرف سے کرسمس مبارک ہو. ویسے اچھا تو بڑا لگتا ہے جی، جو پنجابی میں کہا بڑا دن مبارک ہو. تو بات بڑی خوبصورت چل رہی ہے، خدا ہمارے ساتھ. تو جو ساتھ کا لفظ ہے یہ کسی دوری کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی دور تھا اور وہ ساتھ ہوا. اب یہ دوری کس طرح سے ہوئی؟ خدا جو آدم کے ساتھ ٹھنڈے وقت میں آ کر باتیں کیا کرتا تھا، خدا دوستانہ ماحول میں رہتا تھا، تو خدا نے حکم صادر کیا کہ تم سب باغ عدن میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے پھل کھا سکتے ہو، پر جو بیچوں بیچ درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا. اس سے حکم عدولی ہوئی، حکم توڑا. تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا نے 16 زن تلواروں کا پہرا لگا دیا، نہ تو اس کے کوئی اندر جا سکے اور نہ اس پھل کو کھا سکے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری ہوا. انبیاء اصغر آئے، انبیاء اکبر آئے. کسی کو خدا نے حبیب اللہ کہا، کسی کو کریم اللہ کہا. اور پھر وہ ایک ہی خدا بات کرتا تھا نبی سے، اسے ہی اپنا پیغام دیا اور وہ پوری امت تک پہنچاتا تھا. خدا نے موسیٰ سے کہا عرب کے پہاڑ پر آ جا، اور خدا نے کہا پہاڑ کے چگرد ایک حد کو مقرر کر دے، نہ تو کوئی انسان نہ تو کوئی حیوان اس حد کو پار کرے. جو اس حد کو پار کرے گا وہ جان سے مارا جائے گا. حدوں کا تعین کیا اور حدیں نظر آتی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب خدا نے ہائیکل بنائی تو ہائیکل میں بھی خدا نے حکم صادر کیا کہ ایک پردہ لگاؤ اور پاک ترین مقام ہو جس پر سال میں ایک ہی دفعہ کاہن جایا کرتا تھا. یہ حدیں نظر آتی ہیں اور کئی سال گزر گئے. خدا بھی اس حد کو چاہتا تھا یہ دور ہو، اور انسان بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی خدا کو دیکھیں، ہم بھی خدا سے بات کریں، خدا ہمارے ساتھ بھی ہم کلام ہو. پر یہ حدیں چلتی رہی، یہ دوری اسی طرح سے چلتی رہی. دراصل یہ دوری تھی. اور خدا نے موسیٰ سے بڑی باتیں کی. خدا 40 دن 40 رات موسیٰ بھوکا پیاسا عرب کے پہاڑ پر رہا، اور خدا موسیٰ سے بات کرتا تھا، خدا اس سے باتیں کرتا. اور یہاں تک کہ موسیٰ کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ اے خدا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو خدا نے ہلکی سی جھلک دکھائی. پر دوری ختم نہیں ہوئی. دوری ویسی کی ویسی ہے کہ خدا انبیاء سے ہی بات کرتا ہے، نبیوں سے بات کرتا ہے، پر باقی جتنے بھی لوگ تھے خدا کے ماننے والے، خدا انہیں نہ نظر آتا نہ بات کرتا تھا، کیونکہ لوگوں کو وہاں تک لے کے جانے والا کوئی نہ تھا. اب بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ بھی سب انسان تھے، سب کے سب خدا کے پیارے ہیں. خدا نے ہی ان کو مقرر کیا، خدا کے لیے انہوں نے قربانیاں بھی دی. موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے محل کو چھوڑتا ہے اور بیابان میں 40 سال گزارتا ہے. جتنے بھی آپ دیکھیں انہوں نے بڑی بڑی آفرز کو رد کیا اور خدا کے لیے مصیبتیں بھی سہی. پر یہ دوری کیوں نہ ختم کر سکے؟ صرف یسوع مسیح ہی کیوں؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یسوع مسیح ہی کیوں اس دوری کو ختم کیا جو خود لکھا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ. کیونکہ انسان تو یہ تھے پر کوئی بھی اتنا کامل نہ تھا جو اس دوری کو ختم کرتا. کیونکہ یہ سب انسان تھے. خدا یسوع مسیح بھی انسان ہے، پر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ساری کائنات کا علت مادسہ ہے. ساری کائنات یسوع مسیح کے وسیلہ سے خلق ہوئی.
सारी कायनात का बनाने वाला है, और खुदा बशरियत में आता है। अब ये एक अलग टॉपिक है कि खुदा का बशरियत में आना, कि ये क्या है, खुदा किस तरह से बशरियत में आ सकता है। एक बहन थी, वो बड़ी दुआगो थी, वो चर्च जाती थी, तो उसके शौहर ने न जाना। उसने हर दफा संडे को कहना आए चर्च चले। उसने कहा ये कैसी बात है कि खुदा जो है वो यीशु मसीह बन के आ गया, वो बशरियत में आ गया, ये किस तरह की बात है। अब वो बहन चर्च चलेगी, वो दोनों मियां बीवी थे, तो बड़ा ही आंधी और तूफान आया। अब कुछ चिड़ियां जो हैं वो खिड़की के रास्ते से कमरे में दाखिल होगी। अब बाहर तूफान है। अब उस शख्स ने सोचा कि बाहर से थोड़ी बारिश भी आ रही है, मैं जाता हूं और खिड़की का दरवाजा बंद करता हूं। जब वो कमरे का दरवाजा खोले, इंटर हो और चिड़ियां उठकर बाहर चली जाएं। अब जब फिर वो बाहर निकले, चिड़ियां फिर अंदर आ जाएं। अब फिर वो जाए, फिर चले जाए। अब उसने उन्हें दाना भी दिया, अब फिर भी वो जब जाए तो वो भाग जाए। अब उसने कहा ये कैसे मुमकिन हो सकता है, या तो मैं चिड़ी बन जाऊं या ये इंसान बन जाए, या ये मेरी बोली समझ सके, इन्हें मैं बता सकूं कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। अब इंसान में ये सक्कत ना थी कि वो खुदा की पाक जात तक पहुंच सके, तो खुदा के पास ये अथॉरिटी और इख्तियार है। खुदा जो है वो इंसान की शक्ल में आ गया। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इलाही तजस्सुम जो है वो बशरियत में हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो दूरी थी वो खत्म की। अब पाक जात होने के ताल्लुक से हम खुदावंद यीशु मसीह को दरमियानी भी कहते हैं कि वो दरमियानी है। अब दरमियानी कैसा, ये दूरी कैसे खत्म की कि खुदावंद यीशु मसीह इतने पाक थे कि इंसान आना मजबूरी था, इंसान का भी हाथ पकड़ा, इंसानी बशरियत जो ली थी, इंसान का हाथ पकड़ा और बाप का हाथ पकड़ा और ये मेल करवा दिया। क्योंकि कोई भी इतना पाक नहीं था, सबके सब जो थे वो इंसान थे, पर खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है। और ये हमें शर्फ हासिल है कि हम इस खुदा की इबादत करते हैं जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ रहता है, जो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, जो हमें हर वक्त जो है वो संभालता और हमारी रहनुमाई करता है। अब दूरी खत्म होगी, खुदा हमारे साथ है। हैकल का पर्दा जो है वो फट गया है, और किसी ने कहा हैकल का पर्दा फटा और यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया रूहुल कुदस के वसीला से। क्योंकि उसने कहा कि अब रूहुल कुदस तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर होगा और तुम्हें तय की बातें बताएगा। अब हर शख्स हैकल में जाता है, पुरपट पर जाता है, पाक तरीन मकाम खत्म हो गया, खुदा सबके साथ बातें करता है। योएल नबी के जो सहीफे में लिखा है उस बात को पूरा किया कि एक वक्त आएगा कि तुम्हारे जवान जो है वो नबूवत करेंगे, रोया देखेंगे। ठीक है, अब वो वक्त आ गया, अब खुदा हमारे साथ है, अब हम जाते हैं, खुदा हमारी सुनता है। तब खुदा सिर्फ नबियों से बात करता था। अब चर्चिज में कितने बच्चे हैं जो कहते हैं जी खुदा ने मुझसे बात की और खुदा तेरे साथ ये करता है, खादिम नबूवतें करते हैं। अब खुदा सबके साथ है। अब अगर दूरी है तो वो हमारी तरफ से है। ये सबसे बेहतरीन और बाबरकत मौका है जब हम इस बात को सीखते हैं कि खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ है तो फिर ये दूरी हमारे कामों की वजह से है। दूरी हमने अपने कामों से जो है वो डाली हुई है। खुदा तो चाहता है, खुदा किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता। अगर इंसान बेताब था कि उस पाक जात को जाने, तो खुदा भी बेताब था कि मैं हर बशर से बातें करूं। जो भी पैदा होता है सब इंसानों से मैं हम कलाम हूं, सबके सब मेरे हैं। और अगर आज वो दूरी है तो हमारी तरफ से है, हमने उस दूरी को बढ़ाया हुआ है। हम खुदा के कामों की तरफ रुझान दें तो खुदा हमारे साथ है, वो कभी भागा नहीं। ठीक है,
तब खुदा मौजज़ाना काम करता था किसी किसी के साथ, नबियों के वसीला से, खुदा उनके वसीला से मौजज़ात करता था। आज जो भी खुदा का बंदा है घुटने टेकता है, खुदा मौजज़ात करता है, खुदा अपना काम को करता है। तो खुदा हमारे साथ है। इस क्रिसमस पर आप देखें, अच्छा एक और बात खूबसूरत कि बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप अपने घरों में पढ़े तो लफ्ज फरिश्ता लिखा है, पर मैंने इसे फरिश्ते पढ़ा है इसीलिए क्योंकि हरूफे जार है आगे, तो जब हरूफे जार हो तो जो हे होता है उसे बढ़िए जो है वो पढ़ना पड़ता है। अच्छा खैर, यूसुफ ने नींद से जाग कर वैसा ही किया। और भाई यूसुफ जाग गया, हम क्यों नहीं जाग रहे? हम आज भी गुनाहों में सो रहे हैं, हम आज भी कुप्पी में सो रहे हैं, हम आज भी चर्च पी के सो रहे हैं, हम आज भी लड़ाइयाँ करके सो रहे हैं, हम आज भी जो है वो गालियां दे के सो रहे हैं, हम आज भी जो है उल्टी सीधी हरकतें करके सो रहे हैं। वो हम कब जागेंगे? अगर यूसुफ जागा था तो बाइस बरकत हुआ। आज हम जागेंगे तो आज यीशु हमारे साथ है। अगर आज हम जागेंगे तो यीशु की कुदरत हमारे साथ है। जिस तरह पास्टर इमरान साहब ने बड़ी वजाहत के साथ सारी चीज़ों का बताया, रूहुल कुद्दस के वसीला से, कलाम के वसीला से खुदा हमारे साथ है, तो फिर हम जागेंगे तो खुदा हमारे साथ है। क्योंकि उसने मलाकी नबी के सीफे में कहा है, रब्बुल अल्फाज फरमाता है तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। आज हमने कदम बढ़ाना है तो खुदा हमें बाइश बरकत करेगा। तो इस क्रिसमस पर आप कोशिश करें कि आप जागें, आप देखें आप कौन से गुनाह में सो रहे हैं, आप देखें आप किस तरह की जिंदगी में सो रहे हैं। अगर आप सो रहे हैं तो आपको जागने की जरूरत है। आपका यस्सु बेताब है, आप जागें और वो आपके साथ रहे, आपको और आपके घराने को बाइश बरकत है। आमीन। जी शुक्रिया पास्टर साहब, आपने इंतहाई जोशीले अंदाज में क्रिसमस की इन खुशियों को दुबाला किया और खुदा के साथ होने के ताल्लुक से आपने खूबसूरत बयान दिया और खूबसूरत अंदाज में हमारे नाज़रीन को मुतारिफ कराया है। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए और भी इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने अज़र बाइबल मुक़द्दस उन आयात, हवाला जात, अल्फाज को इस्तेमाल किया जिनसे साबित होता है कि खुदा अब कभी कभी नहीं बल्कि परमानेंट हमारे साथ रहने के लिए आ गया है। आमीन। और ये सादत और ये बरकत भी हमें हासिल है कि पहले एक नबी सिर्फ खुदा से मिला करता था और बाकी सारी उम्मत देखा करती थी। आज पूरी उम्मत के साथ, हर एक के साथ खुदा है। अगर एक मेंबर के 100 मेंबर हैं तो 100 के साथ ही खुदा है। पादी साहब के साथ भी है और साथ साथ कलीसिया के साथ भी है। और कलीसिया का कोई भी मेंबर बिला झिझक आज खुदा के पास आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह आ चुका है और खुदा हमारे साथ है। तो यीशु मसीह ने एक दावा किया, अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। अंबिया आए, रसूल आए, पैगंबर आए, लेकिन वो कहते थे खुदा आपके साथ होगा। तमाम जो इल्हामी कुतुब हैं वो ये तालीम देती हैं कि खुदा आपके साथ होगा। ये वाह दावा यीशु मसीह का, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यानी यीशु मसीह खुदा है। तो ये बजा लफ्ज लिखा गया इमानुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। तो क्रिसमस की सारी खुशियों में खुदा आपके साथ है। गमजुदा नहीं होना, परेशान नहीं होना। अगरचे आपको कुछ चीजें नहीं मिली तो परेशान मत होइए। खुदा के खदाम ने अभी सिखाया है कि दुख में वो आपके साथ है, सुख में आपके साथ है, हर हाल में खुदा आपके साथ है। सो एंजॉय कीजिए और सबसे बड़ी बरकत भी हासिल कीजिए कि खुदा हमारे साथ है। जुड़े रहिए होशयारा टीवी से और बाखबर रहिए बाइबल मुक़द्दस के नित नए भेदों से, मुकाशफा से, ताकि आप करें रूहानी एतबार से तरक्की और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। अब इजाजत दें अपने होस्ट पास्टर पतरस सदीक को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।